Hello everyone. So today we'll start with the last unit of statistical physics. ठीक है? The third unit in which we'll talk about Fermi-Dirac statistics. So now the first topic that we'll start here is Maxwell-Boltzmann distribution as a limiting case of Bose-Einstein distribution. इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे? मैंने शुरू में भी ये चीज बोली थी कि with the help of Bose-Einstein distribution law we can derive the Maxwell-Boltzmann distribution law. Actually the Maxwell-Boltzmann distribution is just a limiting case of Bose-Einstein distribution. कैसे करेंगे हम? देखो ना, what is Bose-Einstein distribution? We all know the Bose-Einstein distribution law, which is Ni is equal to Gi upon e raised to power alpha plus beta ui minus 1. ठीक है, this is representing the most probable distribution of distributing Ni particles in Gi sub-energy levels corresponding to the ith energy state having average energy ui. ठीक है. Now here we are considering the case for d very less than 1. Now जब d हमारा बहुत कम होगा 1 से, तो उस केस में Bose-Einstein distribution law जो है, it will reduce to the Maxwell-Boltzmann distribution law. कैसे? d हमारा क्या है? d is e raised to power minus alpha. ठीक है. और हमारा one second. If d is जब हमने बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ करा था तो वहां पर हमने लेट किया था कैपिटल डी टू बी ई रेज टू पावर माइनस अल्फा. अब हमारे पास एनआई में डिनोमिनेटर के अंदर ई रेज टू पावर अल्फा टर्म जो है वो आ रही है. ठीक है. नाउ फॉर डी टू बी वेरी लेस देन 1, व्हाट विल बी ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा यूआई. That is e raised to power alpha को I can write as 1 upon d. So it becomes 1 upon d e raised to power beta ui. ठीक है. ये जो हमारी क्वांटिटी है दिस इज वेरी लेस देन 1. इसका मतलब 1 upon d जो है हमारा it will be very large. So this shows that for d to be very less than 1, the e raised to power alpha plus beta ui term becomes very large as compared to 1. ठीक है. So this term is very large as compared to 1. So we can neglect 1 in comparison to this exponential if this exponential is very large as compared to 1. So this equation can be reduced to this form. Ni equal to Gi upon e raised to power alpha plus beta ui. और ये हमारा क्या है? This is nothing but the Maxwell-Boltzmann distribution law. Maxwell-Boltzmann distribution law को जब हमने derive किया था वहाँ मैंने बताया था then we can write it in this form also. Ni is equal to Gi upon e raised to power alpha plus beta ui. So we can say that in the limiting case of d to be very less than 1 or e raised to power minus alpha to be very less than 1, the Bose-Einstein distribution law reduces to the classical law, that is the Maxwell-Boltzmann distribution law. और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो हमारा बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो क्वांटम लॉ है और मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्लासिकल लॉ है. तो जो ये क्वांटम लॉ है हमारा इट बेसिकली रिड्यूसेस टू द क्लासिकल लॉ इन द लिमिटिंग केस ऑफ डी टू बी वेरी लेस देन 1. इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है. अगर d हमारा बहुत कम है 1 से, उस केस में हमारा क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स जो है वो फॉलो होगी. इन दैट केस द बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ रिड्यूसेस टू द मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ since this exponential term becomes very large as compared to 1 in the denominator of this expression. So we can neglect 1 in comparison to this exponential such that this law reduces to this form, which is nothing but the Maxwell-Boltzmann distribution law. Moreover, energy क्या होगी अब सिस्टम की for d to be very less than 1. देखो F1 अल्फा हमारा क्या था? ठीक है, हमने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करी थी ना. F1 अल्फा हमारा आया था समेशन dr अपॉन r रेज टू पावर 3/2.
दैट मीन्स F1 अल्फा हमारा था, अगर तुम लोगों को याद हो, बाय इक्वेशन नंबर 3.38 F1 अल्फा हमारा था d प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 प्लस डी क्यूब अपॉन 3 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 प्लस सो ऑन। ठीक है, ये हमारी F1 अल्फा थी। सिमिलरली हमारा F2 अल्फा क्या था, d प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू पावर 5/2 प्लस डी क्यूब अपॉन 3 रेज टू पावर 5/2 प्लस सो ऑन। ठीक है, इसको ध्यान रखना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3.38 एंड 3.39। वहां पर हमने इंटीग्रल सॉल्व करके वैल्यू निकाली थी F1 अल्फा और F2 अल्फा की। तो ये जो हमारी इंटीग्रेशन आया था F1 अल्फा और F2 अल्फा, ये हमारा आया था इन टर्म्स ऑफ D। F1 अल्फा था d प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 प्लस डी क्यूब अपॉन 3 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 प्लस सो ऑन। F2 अल्फा था हमारा d प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू पावर 5/2 प्लस डी क्यूब अपॉन 3 रेज टू पावर 5/2 प्लस सो ऑन। ठीक है, if we are considering d to be very less than 1, then what happens to the value of F1 alpha and F2 alpha? F1 alpha जो है हमारा और जो F2 alpha है वो d के ऑर्डर में है। फर्स्ट टर्म d है, सेकेंड टर्म d स्क्वायर के फॉर्म में है, थर्ड टर्म d क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर टर्म की तरफ जाते जाएंगे, d की वैल्यू जो है वो और कम होती जाएगी। अगर d हमारा 1 से बहुत छोटा है तो d स्क्वायर और छोटा होगा, d क्यूब उससे भी ज्यादा छोटा होगा। सो वी कैन नेग्लेक्ट द हायर ऑर्डर टर्म्स एंड कंसीडर ओनली द फर्स्ट टर्म। सो वी कैन राइट F1 अल्फा टू बी इक्वल टू F2 अल्फा इक्वल टू d। तो F1 अल्फा हमारा D हो गया, F2 अल्फा भी हमारा D हो गया। और ये D क्यों होगा, ये D सिर्फ इसी कंडीशन पे होगा व्हेन D इज वेरी लेस देन 1। ठीक है, तो जब हमारी ये कंडीशन है, हमारा ये वैल्यू हो गई F1 अल्फा और F2 अल्फा की। तो अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी। हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई थी ना, जिसमें यहाँ हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में था F1 अल्फा और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था F2 अल्फा। अब F1 अल्फा को हम D से रिप्लेस कर देंगे, F2 अल्फा को भी D से रिप्लेस कर देंगे, सिंस D इज वेरी लेस देन 1. So what will be U upon N? U is the total energy, N is the total number of particles. So U upon N is basically representing the energy per particle. तो U upon N हमारा कितना आ गया, इन दोनों को डिवाइड करो, we'll be left with only 3/2 kT, जो हमारा V upon H cube into 2m pi kT raised to power 3 upon 2 into capital D, ये U और N में कॉमन है, so they will cancel out and we'll get 3 upon 2 kT. So what will be the energy now? 3/2 and kT। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, दिस इज द वेरी वेल नोन रिजल्ट ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमारा क्या कहता है कि under the condition of D to be very less than 1, the Bose-Einstein distribution law reduces to the Maxwell-Boltzmann distribution law. Moreover, हमने क्या देखा, जो एनर्जी है वो भी रिड्यूस हो रही है to the well-known result of classical statistics under the condition of D to be very less than 1. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि Maxwell-Boltzmann distribution जो है, it is basically a limiting case of Bose-Einstein distribution. And what is the limiting case? The limiting case is D to be very less than 1, where D is e raised to power minus alpha. ठीक है, D अगर very less than 1 होगा, then F1 alpha जो है that will be equal to F2 alpha, that is equal to capital D. हमने लास्ट क्लास में डिराइव करी थी इक्वेशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टोटल एनर्जी की। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है दे वर गिवन बाय द इक्वेशन नंबर 3.34। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एक्सप्रेशन जो है वो 3.34 से है, उसको देखना। टोटल एनर्जी हमने निकाली थी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3.36। दिस इज इन टर्म्स ऑफ F1 अल्फा एंड F2 अल्फा, इक्वेशन नंबर 34 एंड इक्वेशन नंबर 36। तो वहीं पर हमने डायरेक्टली जो है बस F1 अल्फा और F2 अल्फा की सब्स्टिट्यूट करी है वैल्यू एज कैपिटल D अंडर द लिमिटिंग केस ऑफ D टू बी वेरी लेस देन 1।
ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक सबको क्लियर है दैट व्हेन बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूसेस टू द मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन distribution, it reduces under the condition of d is equal to e raised to power minus alpha to be very less than 1. ना अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं विच इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन. इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद वील देन स्टार्ट विद आवर थर्ड स्टैटिस्टिक्स विच इज द फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स. तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है डीजेनरेसी एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन. Before studying Bose-Einstein condensation, you should know what is degeneracy. Degeneracy हमारा होता क्या है? तो आज हम देखेंगे what is degeneracy. Then we'll proceed with the Bose-Einstein condensation. And this is very important topic. चाहे आगे हम रिसर्च की भी बात करें, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है बहुत हॉट टॉपिक है. Here we can make Bose-Einstein condensates, ठीक है, using the Bose-Einstein condensation. और ये जो Bose-Einstein condensates हमारे पास आते हैं, ये हमारे पास एक नई ब्रांच आ जाती है, नई फॉर्म ऑफ नई ब्रांच आ जाती है, which is consisting of different particles and those particles are Bose-Einstein condensates. ठीक है, तो यहाँ पर आज सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डीजेनरेसी एंड देन वील प्रोसीड विद बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन. तो बिफोर स्टार्टिंग विद द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन यू शुड नो व्हाट इज डीजेनरेसी. नाउ ये हम कैसे पता लगाएंगे? देखो, वी फाइंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3.45 that there is deviation in energy from the value of ideal gas behavior. Equation number 3.45 हमारी क्या थी? अगर तुम लोगों को याद हो, इक्वेशन नंबर 3.45 हमारी थी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. बोस-आइंस्टीन गैस जब हमने किया था वहां पर हमने इसको डिराइव किया था एंड इट वाज 3/2 into RT eta. ठीक है, एंड दिस इज फॉर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस. वहां पर हमने NK जो है उसको R से रिप्लेस किया था. देखो, ये तो हमारी क्लासिकल एनर्जी है, ये हमारी एनर्जी आई थी व्हेन वी वर स्टडीइंग द बोस-आइंस्टीन गैस. ठीक है, अब देखो इन दोनों एनर्जी की एक्सप्रेशन में कितना डिफरेंस है. जो डेविएशन आया है एनर्जी में फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर, this behavior, ideal gas behavior मतलब perfect gas behavior, that means we are talking about the classical gas. ठीक है, जो ये हमारी क्वांटम गैस है बोस-आइंस्टीन गैस, ये डेविएट कर रही है फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन. कैसे डेविएट कर रही है? देयर इज एन एडिशनल फैक्टर ईटा that occurs in this expression which can be held responsible for this deviation. देखो, for 1 gram molecule of gas ये NK जो है हमारा R हो जाएगा. So classically the energy will become 3/2 RT. पर बोस-आइंस्टीन गैस से जो हमने एनर्जी निकाली बोस-आइंस्टीन गैस की, वो कितनी आई थी हमारी? 3/2 RT into eta. So there is deviation in energy from the value of the ideal gas behavior. So let's say this additional factor eta जो है, it is held responsible for this deviation. Now similarly, now next, now this deviation from the perfect gas behavior exhibited by the Bose-Einstein gas is termed as gas degeneracy. Now degeneracy जो है इसका मतलब होता क्या है? Degeneracy का मतलब होता है Bose-Einstein gas का deviate होना from the perfect gas behavior. अगर वो exactly behave कर रही है as perfect gas, as classical gas, तो हम बोलेंगे that this is also non-degenerate. But if it is deviating from the ideal gas behavior, then this is known as the degeneracy of Bose-Einstein gas or the gas degeneracy. ठीक है, और ये जो perfect gas है हमारी, this is the non-degenerate gas. ठीक है, और जो बोस-आइंस्टीन गैस है हमारी, it is deviating from the ideal gas behavior and this phenomena is known as the gas degeneracy. ठीक है, और ये जो हमारा गैस डिजेनरेसी है, ये जो है फंक्शन है डी का. कैसे फंक्शन है डी का ये हम अभी देखेंगे. ये बता रहा है ये जो डीजेनरेसी हो रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर डी. इस डी को हम डीजेनरेसी पैरामीटर भी बोलते हैं.
क्यों बोलते हैं ये हम आगे देखेंगे। डी फैक्टर जो है ये हमें बताता है कि गैस जो है वो डीजेनरेट है या नहीं। अगर इस डी की वैल्यू जो है हमने जस्ट अभी देखा था, इफ इट कम्स आउट टू बी वेरी वेरी लेस देन 1, then in that case Bose-Einstein distribution reduces to the Maxwell-Boltzmann distribution. That means under this condition there will be no deviation from the perfect gas behavior. Gas जो है it is non-degenerate, but if the value of D increases, we know, अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो वहां पर हमने D की वैल्यू निकाली थी। लोवेस्ट स्टेट के लिए हमारी D की वैल्यू क्या थी? D जो है हमारा इट वाज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अगर तुम लोगों को ये चीज जो है याद हो, मैं एक बार इस फाइल को ही खोल लेती हूँ। अब मैंने जब ये फाइल खोली दी है तो यहाँ पे मैं तुमको सारी चीजें बता देती हूँ। देखो ये हमारी एक्सप्रेशन आई थी n की, ठीक है। यहाँ पर हमने अब F1 अल्फा को D सब्स्टिट्यूट किया था फॉर D टू बी वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि हमारा F1 अल्फा क्या था? हमारा F1 अल्फा जो था इट वाज गिवन बाय दिस इक्वेशन। सो फॉर D टू बी वेरी वेरी लेस देन 1 वी कैन नेग्लेक्ट द हायर ऑर्डर टर्म्स एंड रिटेन ओनली अप टू द फर्स्ट टर्म। सिमिलरली हमारा F2 अल्फा जो है वो हमारा ये आया था। दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू D ओनली अंडर द कंडीशन ऑफ D टू बी वेरी वेरी लेस देन 1। तो n में जो है हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी F1 अल्फा की एज D। सिमिलरली यहाँ U में हमने F2 अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी एज D, और हमने देखा था U अपॉन n हमारा आया 3/2 इंटू KT, और यू कैन से U हमारा आया 3/2 NKT, ठीक है, विच इज द वेल नोन रिजल्ट ऑफ द क्लासिकल मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ये हमने अभी तक देखा था। फिर उसके बाद हमने डीजेनरेसी शुरू करी थी। डीजेनरेसी में मैंने ये चीज बताई कि जो हमारा बोस-आइंस्टीन गैस का बिहेवियर होता है वो डेविएट हो जाता है फ्रॉम द परफेक्ट गैस बिहेवियर। तो ये जो डेविएशन है बोस-आइंस्टीन गैस का फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, इस डेविएशन को हम लोग बोलते हैं गैस डीजेनरेसी। और अगर हमारा डी वेरी वेरी लेस देन 1 है, देन इन दैट केस देयर विल बी नो डेविएशन। बट if D जो है हमारा it is not very very less than 1, it is having some appreciable value that cannot be neglected, in that case there will be degeneracy in Bose-Einstein gas. There will be difference in the behavior of Bose-Einstein gas from the perfect gas or from the classical gas behavior. तो वो अब हम देखेंगे, ठीक है। D की वैल्यू जो है हमने क्या निकाली थी? D हमारा क्या था? e raised to power minus alpha, ठीक है, विच केम आउट टू बी, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, D हमारा कितना आया था? NH³ अपॉन V इंटू 2m पाई KT रेज टू पावर 3/2। ये हमने निकाला था फ्रॉम दैट एक्सप्रेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको अब हम यहाँ यूज करेंगे। उससे पहले एक चीज और देख लो यहाँ पर, उसके बाद फिर मैं वो फाइल खोलूंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने वाली है, वो है ये कंडीशन, ठीक है। हमने ये कंडीशन जो है डिराइव करी थी जहाँ पे D जो है इसकी वैल्यू जो है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। और ये हमने कब निकाली थी? व्हेन वी वर कंसीडरिंग the ground state or the lowest energy state as the energy state having the zero energy। अगर हम कंसीडर करते हैं जो हमारी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है और जो ग्राउंड स्टेट है इट इज एट जीरो एनर्जी, उस केस में हमने ये कंडीशन निकाली थी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आ जाओ। Now from equation 3.44 the approximate value of D is this। हमने इक्वेशन नंबर 44 से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली थी D की, ठीक है। वो मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3.44। यहाँ से हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली थी D की। अब हम देखेंगे कि कैसे जो है D जो है इट इज अ फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस डीजेनरेसी। D हमारा क्या है? e raised to power minus alpha, so D comes out to be this। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? जो हमारा D है it depends upon n upon V, the number density, that means the number of particles per unit volume. It is depending upon density of particles, it is depending upon the temperature T, it is depending upon the mass M। इन तीन फैक्टर्स पे ये चीज हमारी डिपेंड कर रही है।
तो अगर हमारा डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होता है या टेम्परेचर डिक्रीज होता है या जो मास है बोसॉन का वो डिक्रीज होता है, देन इन दैट केस दिस वैल्यू ऑफ D increases. D is directly proportional to the number density, inversely proportional to mass and the temperature. So from above equation it shows that if the density of particles is increased, अगर n upon v को हम बढ़ाएंगे या टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो हमारा जो ये d है it will increase. इसको करेक्ट करो, यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. Correct it. If the number density increases and the temperature decreases, then the value of D increases. ये D हमारा increase होता है. That means D हमारा क्या है, e raised to power minus alpha, where alpha is minus mu upon kT. इसको भी correct करो, यहाँ m नहीं आएगा, mu, the chemical potential per particle. So अगर हमारा n upon v increase होगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा, देन जो हमारा D है वो इंक्रीज होगा. दैट मीन्स हमारा जो अल्फा है वो डिक्रीज होगा. D e raised to power minus alpha है, so if D increases then alpha will decrease. Now in that case behavior of perfect gas departs farther and farther from that of the classical perfect gas. अगर हम जो है D की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमारा जो गैस डीजेनरेसी है वो बढ़ेगी. डेविएशन जो है फ्रॉम द क्लासिकल परफेक्ट गैस वो बढ़ेगा बोस-आइंस्टीन गैस का. मैंने अभी बताया था D अगर हमारा वेरी वेरी लेस देन 1 है तो उस केस में बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में रिड्यूस हो जाता है. तो D अगर हमारा बहुत कम है उसी केस में हमारी जो है गैस डीजेनरेसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, हमारी गैस जो है वो नॉन डीजेनरेट होगी. It will behave ideally. But if the value of D increases, then the gas जो है the behavior of gas will deviate from the classical perfect gas. ठीक है? So this gas is said to be degenerate and the parameter D is called the degeneracy parameter. तो जो हमारा ये जो parameter है D, it basically accounts for the degeneracy parameter. D की वैल्यू जितनी कम होगी गैस हमारी degenerate नहीं होगी, या जब D की वैल्यू बहुत ही कम होगी गैस हमारी नॉन डिजेनरेट होगी. पर जैसे जैसे D की वैल्यू बढ़ेगी degeneracy increase होगी. ठीक है, so degeneracy is increasing with increase in the value of D, because if D increases then the behavior of the gas from the ideal behavior deviates. behavior जो है deviate होगा क्योंकि हमने क्या देखा था, जो हमारा ये एनर्जी का फैक्टर था it depends upon D. 3/2 RT हमारा था, उसके बाद ब्रैकेट में जो हमारी टर्म थी that is D dependent. ठीक है, यहाँ पर इसको देख भी लो, हमारी ये फाइनल एक्सप्रेशन आई थी ना, देखो ये तो हमारा एक्सप्रेशन है आइडियल गैस का. ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये एक स्क्वायर टर्म आ रही है फॉर अ बोस-आइंस्टीन गैस. तो अगर ये स्क्वायर टर्म हमारी नहीं होगी, इन दैट केस वी कैन से दैट हमारा जो सिस्टम है इट इज बिहेविंग आइडियली, इट इज बिहेविंग क्लासिकली. बट अगर ये स्क्वायर टर्म हमारी होगी देन इन दैट केस दिस एनर्जी इज डेविएटिंग फ्रॉम द आइडियल गैस एनर्जी. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमारी कौन सी टर्म है, D. So that means this parameter D जो है it basically accounts for the degeneracy. So that's why this is known as the degeneracy parameter. I hope यहाँ तक सबको clear है. ठीक है, next हमने expression में देखा D जो है it depends upon 3 factors. The mass of the particle, ठीक है, it is also depending upon the number density or the particle density, that is the number of particles per unit volume n upon V, and it is also depending upon the absolute temperature of the gas. इसका मतलब है जो क्राइटेरिया है डीजेनरेसी का that will be based upon this value n upon V divided by m into T into raised to power 3/2. डीजेनरेसी जो है इसके ऊपर बेस्ड क्यों है, क्योंकि जो हमारा फैक्टर है D वो इस पे डिपेंडेंट है. जैसे जैसे n upon V, m या T की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे D की वैल्यू भी चेंज होगी. एंड दिस D जो है इट अकाउंट्स फॉर द गैस डीजेनरेसी. दिस इज नोन एज द डीजेनरेसी पैरामीटर.
meter. So this shows that degree of degeneracy will be more when temperature T is low. अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे इन दैट केस डीजेनेरेसी जो है वो इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि अगर हम T को डिक्रीज करेंगे तो हमारा D भी इंक्रीज होगा. D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T raised to power 3/2. So as we decrease the T, as we lower the temperature, then the degeneracy parameter increases. So the degree of degeneracy will increase. Moreover, if we increase the particle density, if the particle density is large, then also the degeneracy parameter increases, or you can say there will be more degree of degeneracy. And it is also depending upon the mass of the particle. If you are talking about a Bose-Einstein gas, then in Bose-Einstein gas the particles are bosons. So if the mass of the boson is small, then the degeneracy parameter is more, so the degree of degeneracy will be more. So the degree of degeneracy depends upon D, and D depends upon N upon V, M and T. Now next, for low values of energy, अब हम क्या देखेंगे कि low values of energy के केस में क्या होगा. अभी हमने क्या देखा? अभी हमने ये देखा कि degeneracy हम कहते किसको हैं? The deviation of the gas from the ideal gas behavior is known as the gas degeneracy. फिर हमने देखा ये जो degeneracy है, it depends upon the factor capital D. If D is very less than 1, then in that case Bose-Einstein distribution reduces to the classical distribution. But as the D increases, the degeneracy increases. Capital D जो है, it depends upon three factors: the number density, the mass and the temperature. So if number density is large, mass is small and the temperature is small or temperature is low, then in that case degree parameter जो है D उसकी value बढ़ेगी. If the value of D is large, then that means the degree of degeneracy is more. ये हमने अभी देखा. Now next we'll consider the case of low values of energy. हमने ऑलरेडी देखा था लो वैल्यूज ऑफ एनर्जीज पे, और हम सबसे लोवेस्ट एनर्जी अगर कंसीडर करते हैं तो उसमें डी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और लेस देन इक्वल टू 1 होती है. ये जो है हम ऑलरेडी पहले जो है निकाल चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारी डीजेनेरेसी जो है वो मैक्सिमम कब होगी? जब डी की वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी. अब इस कंडीशन में देखो डी की वैल्यू जो है मैक्सिमम कब है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी इज 1. सो फॉर लो वैल्यूज ऑफ एनर्जी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी इज 1. So if the D is maximum, then that means the degeneracy is maximum. ठीक है, so for low values of energy, the maximum possible value of D is 1. So as a result, alpha can never be negative. हमारी alpha की वैल्यू क्या थी? मैं फिर से वो कंडीशन खोल देती हूँ. This one. For low values of energy, D is greater than equal to 0, less than equal to 1 and also alpha is greater than equal to 0. ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखी है कि अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा हो तो तुम्हें पता है मुझे क्या रेफर करना है. तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू D की 1 है, so that means alpha can never be negative. It is greater than equal to 0. So for low energies, the limiting case of highest degeneracy in Bose-Einstein gas reaches when D is equal to 1 and alpha is equal to 0. D हमारा क्या है? D is e raised to power minus alpha. ठीक है, and we are talking about the low values of energy. ठीक है, और हमें पता है low values के लिए जो हमारा alpha है that is greater than equal to 0 और हमारा जो D है that is greater than equal to 0 and less than equal to 1. Now अब इसमें सबसे पहले ये चीज देखने की है कि हम low values of energy consider क्यों कर रहे हैं. Energy हमने देखा it is directly proportional to T, 3/2 kT. ठीक है, एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. और हमने ये भी देखा जब हमारा टी डिक्रीज होगा तब हमारा कैपिटल डी इंक्रीज होगा.
तो डीजेनरेसी भी इंक्रीज होगी. सो वी आर इंटरेस्टेड इन लो टेम्परेचर वैल्यूज, वी आर इंटरेस्टेड इन लो एनर्जी वैल्यूज, क्योंकि लो एनर्जी पर आकर ही डीजेनरेसी जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि लो एनर्जीज पे हमारा टेम्परेचर लो है. टेम्परेचर लो है दैट मीन्स डीजेनरेसी पैरामीटर ज्यादा है. जितना ज्यादा डीजेनरेसी पैरामीटर होगा उतनी ही ज्यादा डीजेनरेसी होगी. तो लो वैल्यूज ऑफ एनर्जी पे हमें पता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी इज 1. ठीक है, और जब डी हमारा मैक्सिमम होगा 1, देन दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा. ई रेज टू पावर माइनस अल्फा 1 कब होगा? व्हेन अल्फा विल बी 0. ई रेज टू पावर 0 इज 1 and we know alpha जो है it is greater than equal to 0. So the minimum value of alpha will be 0. So this is representing the case of highest degeneracy because we are considering D to be maximum. जैसे जैसे D हमारा बढ़ेगा degeneracy हमारी बढ़ेगी. जब हमारा D मैक्सिमम हो गया then that means degeneracy भी हमारी मैक्सिमम हो गई. So for low energy values the limiting case of highest degeneracy in Bose-Einstein gas reaches when D is equal to 1 and alpha is equal to 0. I hope ये सबको clear है कैसे आया. So now we'll find F1 alpha keeping D equal to 1. F1 alpha हमारा क्या था? 1 plus D. F1 alpha हमारा था D plus D square upon 2 raised to power 3 upon 2 plus D cube upon 3 raised to power 3 upon 2 plus so on. तो substitute D equal to 1, तो F1 alpha हमारा ये हो गया. ठीक है, so D is maximum equal to 1. So this F1 alpha corresponding to D equal to 1 will be the maximum value of F1 alpha. So F1 alpha maximum comes out to be 2.612. इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट दिस वैल्यू. ठीक है, इसको डायरेक्टली तुम्हें यूज करना है एग्जाम में. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. एन हमारा क्या था? n हमारा आया था v अपॉन एच क्यूब इंटू 2m पाई के टी रेज टू पर 3/2 इंटू f1 अल्फा. तो f1 अल्फा हमारा जो है मैक्सिमम होगा अगर, तो दैट मींस हमारा n अपॉन v जो है वो भी मैक्सिमम होगा. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्टिकल डेंसिटी विल बी गिवन बाय हमारा जो n था. मैं एक बार एक्सप्रेशन दिखा देती हूँ. We are using this equation number 3.34. इस v को मैं यहाँ पर ले गई, so this will become n upon v और ये मेरा हो गया 1. ठीक है, तो this will be maximum when we substitute f1 alpha to be maximum equal to 2.612. So इस equation से हमें क्या पता चल रहा है? This equation shows that there can be no value of n upon v greater than this इक्वेशन. ये जो है नंबर डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है. इसका मतलब इससे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है. देयर कैन बी नो वैल्यू ऑफ particle density greater than n upon v maximum given by equation 4.4. ठीक है, क्योंकि ये हमारी मैक्सिमम है एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल डेंसिटी. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्टिकल डेंसिटी. इससे ज्यादा पार्टिकल्स जो है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, since the above equation 4.4 corresponds to the limiting case of Bose-Einstein degeneration, limiting case of highest degeneracy in Bose-Einstein gas. ठीक है, so no solution of equation 3.34 can exist. 3.34 हमारी simple n वाली equation है जो मैंने just अभी दिखाई थी. n is equal to v upon h cube into 2m pi kt raised to power 3/2 into f1 alpha. इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर ग्रेटर देन n अपॉन v मैक्सिमम. इससे ज्यादा n अपॉन v की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इससे ज्यादा हुए then that means हमारा जो D है वो 1 से ज्यादा हो जाएगा. But we know that D जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है. D 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि n upon V अगर n upon V मैक्सिमम से ज्यादा हो गया
देन इन दैट केस F1 अल्फा हमारा 2.612 से ज्यादा हो जाएगा। F1 अल्फा अगर 2.612 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब D हमारा 1 से ज्यादा हो गया, which is not possible. So there can be no value of n upon V greater than this n upon V maximum. This is the maximum number of particle density that we can have for low energy values. Next. Now, if we consider this temperature T to be the critical temperature, so we can find the temperature, critical temperature at which the particle density becomes maximum. ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, TC will be given by this expression. ये हमने directly जो है यहाँ से निकाला है from the equation number 4.4. So hence the critical temperature जो है ये हमारा lowest temperature है for which a solution of equation 3.34 is possible. ये हमारा lowest temperature है जिसके लिए solution जो है 3.34 का possible है. अगर हमारा n upon v जो है n upon v maximum से ज्यादा हुआ, then in that case D becomes greater than 1. So the maximum value of particle density possible is n upon V maximum given by equation number 4.4, and the corresponding temperature is known as the critical temperature. Now, so we can say that TC जो है it is basically the temperature at which the degeneracy of energy level starts. यहाँ से हम ये चीज conclude कर सकते हैं कि हमारा critical temperature जो है वो हमारा वो temperature है जहाँ पे जो है degeneracy जो है energy level की start हो जाती है. मतलब यहाँ पर आके जो हमारी gas है उसका जो behavior है वो deviate हो जाएगा from the perfect gas behavior. इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, विच इज गिवन बाय दिस इक्वेशन नंबर 4.7. यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर प्लॉट किया है एनर्जी को करस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस. और इसमें देखो जब हमारी हायर वैल्यूज है टेम्परेचर की, उस पॉइंट पर जो बिहेवियर है एनर्जी का वो आइडियल गैस बिहेवियर के पैरेलल है. ठीक है, फिर जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द क्रिटिकल टेम्परेचर, एज T बिकम्स लेस देन TC, जो हमारा U है इट इज डेविएटिंग फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर. ये जो हमारा डॉटेड लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नॉन डिजेनरेट gas. This is representing the energy corresponding to the ideal or classical or the non-degenerate gas. और ये जो हमारी full line है, this is indicating the relation between U and T of a degenerate gas. देखो यहाँ पर लिखा है below the critical temperature TC, full line जो है it is indicating the relation between U and T of a degenerate gas, whereas the dotted line passing through the origin is representing the relation between U and T for a non-degenerate gas. तो देखो यहाँ पर जो है एनर्जी जो है इट इज डेविएटिंग. आइडियल बिहेवियर ये होना चाहिए, बट जैसे ही टेम्परेचर लेस देन TC है, जो आइडियल बिहेवियर है गैस का उससे ये डेविएट हो रही है. कितने अमाउंट से डेविएट हो रही है, दिस इज U0. लेट्स से दिस U0 जो है दिस इज कॉल्ड द 0 पॉइंट एनर्जी. ठीक है, तो हर एक गैस जो है उसका अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होता है. हीलियम गैस जो है एट critical temperature 5 Kelvin, it becomes degenerate. So we can say that it is the temperature at which degeneracy starts. इससे पहले जो है behavior जो है हमारा बोस-आइंस्टीन गैस का वो आइडियल गैस बिहेवियर के जैसा है, सेम लाइन पर है. ठीक है, दोनों की एनर्जी जो है सेम है. जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है, व्हेन इट बिकम्स लेस देन TC, जो हमारी एनर्जी है दैट इज डेविएटिंग फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द नॉन डिजेनरेट गैस. सो वी कैन से दैट एट T equal to TC the degeneracy of energy level starts. और ये हम इस चीज से भी पता लगा सकते हैं, देखो हमारा जो कैपिटल T था that is inversely proportional to T raised to power 3/2.
कैपिटल डी हमारा क्या था, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T रेज टू पावर 3/2। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर कम होगा हमारा कैपिटल डी बढ़ेगा और डीजेनरेसी जो है बढ़ेगी। टेम्परेचर जब हमारा ज्यादा होगा देन इन दैट केस हमारा डी जो है वो कम हो जाएगा और डीजेनरेसी जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो वही चीज हमारी यहाँ पर आ रही है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा डी जो बिहेवियर है आइडियल से वो डेविएट होता नजर आ रहा है, वो अब ओरिजिन पे नहीं जा रहा। ठीक है, सो दिस टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल स्टार्ट्स। इसका मतलब क्या है ये हम आगे देखेंगे व्हेन वी स्टार्ट द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन क्या होता है, जब हम बोस-आइंस्टीन गैस को विच इज कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वीकली इंटरैक्टिंग बोसॉन्स, जब हम उसको कूल डाउन करेंगे, मतलब जब हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उस केस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स और यू कैन से ऑल ऑफ द बोसॉन्स जो है दे विल ट्राई टू ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। जो सारे के सारे बोसॉन्स हैं वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पर आ जाते हैं और यू कैन से ऑल ऑफ द बोसॉन्स जो हैं दे आर कंडेंस्ड इनटू द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट एज द टेम्परेचर इज लोवर्ड। ठीक है, टेम्परेचर कितना होता है, इट इज अराउंड नैनो केल्विन। जब हम वहां तक टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं माइक्रो और नैनो केल्विन तक, तब हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। दैट मींस जो हमारे सारे के सारे बोसॉन्स हैं now they will occupy the lowest energy state। जब सारे के सारे बोसॉन्स लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और मोस्ट ऑफ द बोसॉन्स जो है जब लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो उस केस में हम लोग कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन हो गया। और अब जो ये हमारे बोसॉन्स हैं दैट आर ऑक्यूपाइंग the lowest energy state when the temperature is lowered to micro और nano Kelvin, तो उन particles या उन bosons को हम लोग बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स। ठीक है, अब ये जो है हमारी नए तरीके के पार्टिकल्स जो है वो बन गए हैं एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट्स। इसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं, जब हम एनर्जी को बहुत कम कर देते हैं देन इन दैट केस हमारे, और जब हम एनर्जी को बहुत कम कर देते हैं एंड वी आर कंसीडरिंग D इज इक्वल टू 1, जब हम D को मैक्सिमम ले रहे हैं इन दैट केस हमने देखा जो हमारी पार्टिकल डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है एंड इट इज गिवन बाय इक्वेशन 4.4। पार्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा पार्टिकल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है दे आर ऑक्यूपाइंग द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। ठीक है, सो फॉर लो एनर्जी वैल्यूज डीजेनरेसी स्टार्ट्स। ठीक है, और डीजेनरेसी जो है वो हाईएस्ट कब होती है, व्हेन D इज इक्वल टू 1 or alpha is equal to 0 and critical temperature is the temperature at which the degeneracy of energy level starts। जैसे ही टेम्परेचर हमारा लेस देन TC होता है, जो हमारी एनर्जी है बोस-आइंस्टीन गैस की वो हमारी डेविएट हो जाती है फ्रॉम द आइडियल गैस energy। So that means at T less than TC degeneracy of energy level starts। अगर यहाँ पर I hope सबको क्लियर है what is degeneracy। ये सिंपली जो है degeneracy का सिर्फ एक ही मतलब है, बिहेवियर गैस का, जो हमारा जो बिहेवियर जो है हमारा गैस एग्जिबिट कर रही है दैट इज डिविएटेड from the perfect gas behavior or from the ideal gas behavior or from the classical gas behavior। इस डेविएशन को हम लोग बोलते हैं गैस डीजेनरेसी। आई होप यहाँ पर सबको क्लियर है। अगर ये चीज अब क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो वहां पर ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन टॉपिक क्लियर ही तभी होगा जब तुम लोगों को डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। सो गैस डीजेनरेसी इज सिंपली द डेविएशन फ्रॉम द परफेक्ट गैस बिहेवियर व्हिच इज एग्जिबिटेड बाय द बोस-आइंस्टीन गैस। और ये हमने देखा ये बिहेवियर
कब शो करता है? ये बिहेवियर तब शो करता है जब हम टेम्परेचर को बहुत कम कर देते हैं. सो व्हेन T is less than the critical temperature TC, degeneracy of energy level starts. Or you can say that for T less than TC, Bose-Einstein gas becomes degenerate. It is deviating from the perfect gas behavior. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज Bose-Einstein कंडेंसेशन.